Hello students and friends, welcome to VMC in association with Doubtnut। मेरा नाम सौरभ आर्श है और हम आज की अपनी मास्टर क्लास में बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की। ये हमारी रे ऑप्टिक्स पे थर्ड एंड फाइनल मास्टर क्लास है। आज की हम मास्टर क्लास में मेनली हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो जेई में अपीयर हुए हैं या जेई में आ चुके हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स। करेक्ट। रेस्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वेटेज, द डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स in this ray optics, right? So let's start this master class on ray optics. Correct. So our first question is, a light ray falls on a square glass slab as shown in the diagram. The index of refraction of the glass, if the total internal reflection is to occur at vertical face, is equal to। करेक्ट। सो हमसे कह रहे हैं कि एक स्क्वायर ग्लास फेस है और इसके ऊपर वाले हॉरिजेंटल फेस पे एक लाइट रे फॉल करता है 45 डिग्री पे, राइट? और हमसे कहता है वर्टिकल फेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो यदि हमने यहाँ पे कंसीडर किया दैट लेट सपोज नॉर्मल से ये एंगल कुछ हमारा आई बनाता है, करेक्ट? सो दिस आई 40 IR total internal reflection to occur at vertical face I should be greater than IC, the critical angle. So now if we take sine of I we can have the equality sign as well, right? So this will become 1 by mu, the refractive index, and then यदि ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, so naturally we can say साइन म्यू को हम लेफ्ट साइड पे ले आए, सो इट विल बिकम म्यू टाइम्स राइट, एंड देन कॉस आर को हम यहां पे लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। नाउ सिंस साइन ऑफ 45 upon sine of r is again going to be mu, so from this we'll get sine of r as 1 upon root 2 times mu। सो यदि हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो विल बी हैविंग ओनली म्यू अननोन isn't it? Solving will get mu is equals to mu greater than or equal to root 3 by 2.
सो TIR होने के लिए मिनिमम वैल्यू कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। एंड विच ऑप्शन इज दिस? दिस इज नथिंग बट ऑप्शन डी। सो मैं यहाँ पे आंसर मिल जाता है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है, जेई मेन का। हालांकि दिस इज आल्सो अ जे एडवांस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम बैक इन जे एडवांस्ड भी ये पूछा जा चुका है। करेक्ट, हमसे पूछ ये रहा है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S is placed at a distance L in front of center of a plane mirror of width D, correct, which is hanging vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L as shown below. The distance over which the man can see the image of the light source in the mirror is, right. तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक्चुअली में ज्योमेट्री पे बेस्ड, प्योरली प्योरली ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। यदि हमने सबसे पहले फिगर ड्रॉ किया, so this is mirror, let's suppose this is the vertical line, this is the point source S, so हम कह सकते हैं ये D है, this is given as L and this is also given as L. तो now we can understand that कि जो extreme light ray होगी that will decide कि man कितने distance पे इसको observe करेगा. So the extreme light ray will be incidented at the edge of, so now we can say this is the normal और यदि हमने यहाँ S से पास होते हुए इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन बनाई, सो हम कह सकते हैं दैट कि ये डिस्टेंस हमारा d/2 है, करेक्ट। एंड वी नो that this triangle as well as this triangle are congruent. So यदि हमने यहाँ पे इन triangles को लेवल कर दिया, so this is S, let's suppose mirror is MN, so this is P, Q, A, B. Whatever is going to be true above, that same is going to be true below, क्योंकि हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल, करेक्ट। ये एंगल हमारा 90 और कॉमन साइड्स है, सो वी नो दैट द ट्राइंगल PMQ and triangle SMQ are congruents. So PQ is equals to SQ, which is d/2, and AB is going to be 2 times PQ, so this becomes D. Are you getting that? क्योंकि
since MQ is equals to QB in triangle AMB. So now we can say that this is nothing but C और ये D हो गया. So हमें AB मिल गया D, which is this distance, और B से C distance is already D, and similarly AB D है, so this will also be D. तो हम कह सकते हैं that BC is equals to D and AB is equals to CD is equals to D. तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा is AB plus BC plus CD, and this is nothing but 3D, और हमारा ऑप्शन आ जाएगा C. फंडा क्लियर? एंड मस्ट हैव रियलाइज क्यों कहा था मैंने कि ये प्योर ज्योमेट्री है. अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा. हमारा अगला क्वेश्चन प्रिज्म का है, जेई मेन 2015 का क्वेश्चन. अ मोनोक्रोमेटिक लाइट is incident on a glass prism of angle A if the refractive index of the material of the prism is mu. A ray of light at an angle theta on the face AB would get transmitted through the face AC of the prism provided. मतलब हमसे ये कह रहा है कि भाई ये प्रिज्म है, सिंपल सी भाषा में यदि हम कहें तो ये एक प्रिज्म ए बी सी, ए बी फेस पर हमारा थीटा एंगल पे हमने लाइट रे को इंसिडेंट कराया है. एसी पे ये ट्रांसमिट हो, ऐसा होने के लिए थीटा के लिए क्या कंडीशन होगी? फंडा क्लियर? तो यदि हम रे को कंप्लीट कर दें तो हम कह सकते हैं दैट रे शुड बी गोइंग लाइक दिस. Correct. So then this angle is going to be R2 और ये हो जाएगा R1, राइट? इंटरनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस. सो कंडीशन के लिए यदि हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि R2 for for light ray to transmit through AC, R2 angle should be less than IC. भाई क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए तभी ट्रांसमिशन होगा. सो साइन ऑफ, और IC कितना हो जाएगा भाई? IC को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/μ, and then R2 is nothing but A minus R1 isn't it? तो हमें R1 मिल गया. Now by Snell's law
at AB, sine of theta upon sine of R1 should be equal to mu. So sine of R1 should be equal to sine of theta upon mu. So यहां से हम कह सकते हैं that sine of theta upon mu should be greater than so theta should be greater than sine inverse big bracket mu times sine of small curly bracket a minus sine inverse 1 by mu small bracket curly bracket closed and big bracket closed. Which option is this way? So let's check up that. Yes, option A is this only. Right, फंडा क्लियर. सो हमें मिल जाता है अपना आंसर विच इज ऑप्शन ए. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा. हमारा अगला क्वेश्चन है 2019 का जेई मेन का. हमसे कह रहा है अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 and focal length f1, right, is kept in contact with another plano concave lens of refractive index mu2 and focal length f2 if the radius of curvature of their respective faces is r each, matlab other than the plane face, and f1 is equals to 2f2, देन mu1 एंड mu2 आर रिलेटेड एज. तो हमें mu1 और mu2 में रिलेशन बताना है जबकि फोकल लेंथ में हमको रिलेशन दिया है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, उसने हमसे कहा f1 इज इक्वल्स टू 2f2. तो यहाँ पे साइन को इग्नोर करना होगा, करेक्ट, क्योंकि केवल वैल्यूज या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ आर रिलेटेड लाइक दिस. तो यदि मैं यहां पे बात करता हूं फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, so 1 by f1 is mu1 minus 1 upon r, and for plano concave lens 1 by f2 is going to be mu2 नेगेटिव, करेक्ट. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो f1 है वो हो गया वैल्यू. यदि हम बात करें तो इट विल बी r अपॉन mu1 माइनस 1, एंड सिमिलरली यदि हमने f2 की बात की तो इट विल कम आउट टू बी r अपॉन mu2 माइनस 1, since f1 is 2 times f2. अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So r upon mu1 minus 1 should be equal to 2r. So we'll be getting mu2 minus mu1 is 2 mu1 minus 2. So then it should be 2 times mu1. So possibly we have got the relation. Let's check the options. Yes, option D is there.
तो क्वेश्चन इनिशियली हमको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, F1 और F2 में रिलेशन एंड देन म्यू1 म्यू2 में रिलेशन पूछ रहा है, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन. सिंपली हमको लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है, फोकल लेंथ को एज पर द गिवन कंडीशन रिलेट करना है, एंड विल गेट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा. और अगला क्वेश्चन भी 2019 का जेईई मेन का क्वेश्चन है. What is the position and nature of image formed by the lens combination shown in the figure? F1 and F2 are the focal lengths. Correct. हमें मतलब फिगर से समझना है, और फिगर में हमको दिया हुआ है दैट के एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, दोनों की फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, राइट. और एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है. सो यदि हम बात करेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो U हो जाएगा हमारा माइनस का 20, F1 हो जाएगा प्लस का 5 सेंटीमीटर. तो यदि हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया, so we'll get 1 upon V1 प्लस का 1 by 20 is equals to 1 by 5. So we'll get V1 is equals to plus का 20 by 3 centimeter. So now for concave lens, we can say that U should be equal to plus का isn't it? So we'll be getting plus का 14 by 3 centimeter. Focal length is minus 5 centimeter given, and the final image हमको निकालना है. So this will become, so what should we get? If we take the LCM, it will become 70. This will be 15. This will be 14. So we should be getting V is equals to 70 centimeter. It comes out to be plus. What does it mean? It simply means that it is real, and concave lens से हमारा राइट में होगा. सो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, 70 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी एट राइट रियल. तो बी के राइट में कुछ यहाँ पे आएगा, हमें प्लस मिला, isn't it? सो ऑप्शन डी. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा. हमारा अगला क्वेश्चन थिन प्रिज्म की कॉम्बिनेशन से है. A thin prism P1 with angle 4 degree, angle of prism हमको दिया हुआ है 4 degree, and made from a glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made from glass of refractive index 1.72 to produce the dispersion without deviation, right? Full stop. The angle of prism of P2 is, हमें P2 का angle of prism बताना है. फंडा क्लियर? सो हम ये कह सकते हैं कि हमसे यहाँ पे जो कह रहा है वो है कि टू प्रोड्यूस द डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. डिस्पर्शन हो बट डेविएशन ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? सो फॉर
dispersion without deviation, we can say deviation by prism 1 plus deviation by prism 2 should be equal to 0, right? And now deviation by prism 1 कितना होगा? It should be nothing but a1 ब्रैकेट में mu1 minus 1, क्योंकि थिन प्रिज्म है, so this will be a2 सो a2 हो जाएगा माइनस का, इनफैक्ट मॉड ले सकते हैं हम, सो मॉड ऑफ a1 mu1 minus 1 upon, so this will be 4 1.54 minus 1 upon 1.72 minus 1, so this will be 0.54 upon 0.72 and we'll get 3 degree. फंडा क्लियर? सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 degree, which is nothing but option C. Right? Simple सा combination of thin prism, dispersion without deviation, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। वैसे इसमें रे ऑप्टिक्स में दो चीजें हमें बहुत स्पेशली अपने ध्यान में रखनी है, या तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है या फिर क्वेश्चन प्योर ज्योमेट्री बेस्ड होगा। करेक्ट? सो ये चीज ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे और अप्रोच करेंगे तो हमें काफी हेल्प होगी। फंडा क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल, ये हमारा जेई एडवांस 2002 का है। द टॉप एंड ऑफ थिन rod of height h placed as shown in the figure. The beaker height is 3h and its radius is h. When beaker is filled with the liquid up to a height 2h, he can see the lower end of the rod, then the refractive index of the liquid is, right? अभी यदि यहाँ पे एयर है तो ये अपर एंड देख रहा है, लिक्विड भर दिया 2h तक तो वो लोअर एंड देख रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये आई का जो हाइट है वो 3h है और ये h है, तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज नथिंग बट 2h और ये भी 2h है। करेक्ट? तो हमारा ये एंगल जो होगा वो 45 हो जाएगा। अब हमने यहां पे लिक्विड फिल कर दिया अगेन 2h हाइट तक, जो अब जो लाइट रे जा रही है दैट लाइट रे गोज फ्रॉम बॉटम एंड, बट ये पॉइंट तो सेम होना चाहिए, then only it can reach through the pinhole to the eye, right? So यदि हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो इस पोजीशन पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो जाएगा कुछ आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 45 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज लेट्स सपोज म्यू। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ at surface of liquid,
राइट। एंड नाउ साइन ऑफ आई क्या हो जाएगा? साइन ऑफ आई इज गोइंग टू बी this hypotenuse upon this perpendicular, और ये हमारा मिड पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा h, और वर्टिकल हाइट इज 2h, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5h। तो यदि यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज लिखा, सो इट विल बी 1/√5। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, so we should be getting mu, the refractive index, as √5/2 of the liquid. And if you look at the option, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट, फंडा क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए, as shown in the figure, the plane surface is silvered, the image will form at. So we know that if we silver one particular surface of a lens, it will behave as a mirror, right? So क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ पे हम सबसे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो फोकल लेंथ मिल जाए जिस फोकल लेंथ के मिरर की नेचर यहाँ पे ये लेंस बिहेव करेगा, right? मतलब this lens will behave like a mirror, so what will be the focal length of that particular mirror and as well as nature, right? So हम कैसे कह सकते हैं? That can be determined using concept of so जो equivalent power है that will be 2 times power of lens plus power of mirror. Here power of lens is going to be what? Mu minus 1 upon r, and power of mirror is 0 because the surface which is silvered is plane surface, so radius of curvature is infinity. तो यदि हमने यहाँ पर substitute किया, so the equivalent power will become 2 times mu minus 1 upon r, and this will be nothing but 1 upon minus का 1 upon f equivalent. So then it will be negative of r upon 2 times minus 1. दो चीजें क्लियर हुई। पहला, एक तो ये फोकल लेंथ हमें मिल गई, दूसरा नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग equivalent mirror is nothing but the concave mirror, but mu minus 1 हमें पता है that focal length of the lens is given as 15 centimeter, isn't it? Where is it given? It is given here, 15 centimeter. So if you look at here, what should be the 15?
what is it equal to? So then it should be r upon mu minus 1. Minus का 15/2 centimeter. Now what is object distance given as 20 centimeter? और मिरर फॉर्मूला यदि हमने यूज किया, so we should be getting what? 1 by v minus का 1 by 20 should be equal to, कितना हो जाएगा? LCM will come as 60 minus का 12. Correct? Which means what should be the answer? 12 centimeter left of the lens. Option B. करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा कि अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. अगला क्वेश्चन हमारा वेक्टर का है. एक्चुअली वेक्टर का है, पूछा फिजिक्स में है और कभी कभार वेक्टर में भी पूछा जाता है. अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन 1/2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन. इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन 1/2 ब्रैकेट में आई माइनस रूट 3 जे कैप. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज. सॉल्व करने के हमारे पास अगेन एक से ज्यादा तरीके हैं. यदि हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की तो हम ये सोच सकते हैं, लेट सपोज दिस इज द मिरर एंड हमारे पास ये हो गई लाइट रे कुछ जो इंसिडेंट हो रही है, एंड देन ये हो गई हमारे पास लाइट रे which is reflected. So this is going to be the normal, right? So ये जो हमारा वेक्टर है, this is given as 1/2 I cap plus root 3 j cap, and this is given as 1/2 bracket I cap minus का root 3 j cap, right? So यहाँ पे अब कह सकते हैं हम कि हमसे जो पूछ रहा है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस I. तो बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस विल आल्सो बी इक्वल टू I. तो इफ यू लुक एट द और इफ यू प्रोड्यूस दिस रे, इंसिडेंट रे, आगे हम इसको प्रोड्यूस कर दें तो हम कह सकते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड reflected ray should be 180 minus 2i, right? So then यहाँ पे हम वेक्टर यूज कर सकते हैं बाई कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. यदि हमने कहा सपोज ये हमारा इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है और ये रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर है. व्हाई डू वी कॉल इट यूनिट वेक्टर? बिकॉज मैग्नीट्यूड वन है दोनों का. So the cos of 180 minus 2i should be equal to I cap r cap magnitude of I cap and magnitude of r cap.
So this will become what? Minus का cos of 2i should be equal to, और स्केलर प्रोडक्ट करेंगे विल बी गेटिंग 1/4 माइनस का 3/4 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1. So minus का cos 2i will become minus का 1/2. So we'll get cos 2i is equals to 2i will come out to be 60 degree. So I will come out to be the angle of incidence 30 degree. So then what should be the answer? Answer should be option A. Correct? Funda clear? Let's move ahead. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अ टू आइडेंटिकल ग्लास रॉड्स ऑफ S1 एंड S2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है 1.5 हैव वन कॉन्वेक्स एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर. They are placed with curved surfaces at a distance d as shown in the figure with their axis shown by dashed line aligned. Correct? When a point source of light P is placed inside the rod S1 on its axis at a distance of 50 centimeters from the curved face, the light rays emanating from it are found to be parallel to the axis inside S2. Right? The distance D is. तो यदि हमने यहाँ पे थोड़ा सा रे डायग्राम के बारे में सोचा तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो कुछ ऐसे होंगी. एंड देन यदि हमने नॉर्मल ड्रॉ किया सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो वो नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा. So the ray was going like this and it will go away from the normal. So away from the normal will go like कुछ ऐसे and then it goes parallel. Parallel कहने का मतलब we can consider final image is formed at infinity. So there is a refraction at this surface, there is a refraction at this surface too. So S1 S2 के दोनों surface पे यदि हमने refraction consider किया so by object distance minus 50 centimeter, radius of curvature is minus का 10 centimeter, refractive index mu1 will become 1.5 and mu2 will become 1. Image distance हमने मान लिया v1, so we'll get 1 by v1 minus का 3/2 upon minus का 50 should be equal to 1 minus 3/2. Correct? The refraction at the spherical curved surface. So we'll be getting 1 by v1 plus का
सो फर्स्ट इमेज विल फॉर्म एट 50 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब हम कुछ मान सकते हैं कुछ यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे कंसीडर किया रिफ्रैक्शन एट 2 ऑफ S2। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या ले सकते हैं, प्लस का 50 माइनस डी, assuming this 50 centimeter is greater than D and the image forms in S2 itself. This image 1 by S1, करेक्ट। सो जो फाइनल इमेज है वो तो इन्फिनिटी होगी, म्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रे गोज फ्रॉम एयर टू मीडियम, सो अब सब्स्टिट्यूट किया हमने, सो 1.5 अपॉन इंफिनिटी माइनस ऑफ and this should be equal to 1.5 minus 1 upon plus का 10, so we'll be getting so unlike our assumption, we have got distance d 70 centimeter which is greater than 50 centimeter, right? So this becomes our option B, right? Is this clear? एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा जल्दी से। हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा, मतलब ये ऐसा बना के दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ लाइट रे इज इंसिडेंट, ये 2004 का है, जे एडवांस्ड का, और पिछला वाला 2015 का था, अगेन जे एडवांस्ड का, राइट। सो रिसेंट ही हमने कई सारे क्वेश्चंस किए। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ irregular shaped slab of refractive index root 2 at a at an angle of 45 degree with the normal on the inclined face as shown in the figure. The ray finally emerges from the curved surface in the medium of refractive index mu is equals to 1.514 and passes through the point E. If the radius of the curved surface is equals to 0.4 meter, find the distance OE correct up to the two decimal places. Precise. कि हमें प्रिसाइज आंसर निकालना है, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायरेक्टली तो कुछ दिया नहीं है, बट पॉइंट टू नोट हियर इज वी आर गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यदि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया दैट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कुछ ये हो जाएगा आर। तो यदि मैंने साइन ऑफ आई स्नेल्स लॉ यूज किया, by Snell's law at inclined face AB. So sine 45 upon sine of R should be equal to root 2. Ray goes from here to the medium itself. यहां से हम कह सकते हैं that sine of R will become 1/2. So precisely R हमारे को मिल जाता है 30 डिग्री, right? And now 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लेते हैं जरा। तो यदि हमने यहाँ पे कंसीडर किया ये एंगल हमारा 90 है और ये 30 है, सो ये एंगल हमारा 60 हो जाएगा, बट ये बेस एंगल भी 60 है, BAD। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस रे
जो स्लैब में मूव कर रही है, इंटरनल रिफ्रैक्टेड रे इन द स्लैब शुड बिकम पैरेलल टू एडी, राइट, और द प्रिंसिपल एक्सिस. सो इसका सीधा मतलब ये हुआ that hence internal refracted ray in slab is parallel to principal axis. So by refraction at spherical curved surface, U तो हो गया infinity, refractive index of incidenting medium mu1 will become root 2, which is 1.414, and mu2 will become 1.514. Radius of curvature is given as 0.4 meter, and it will remain plus because it is towards the emergent ray direction, sorry, towards the incident ray direction, in the direction of incident ray, right. So यहाँ पे हमें v जो मिल रहा है वो e डिस्टेंस हो जाएगा जो हमें फाइनली चाहिए. So यदि हमने सब्स्टिट्यूट किया, so we'll get 1.514, रिलेशन भी लिख लेते हैं एक बार, mu2 by v1 या mu2 by v, so we'll be getting 1.514 upon OE minus 0 क्योंकि U infinity है, 514 minus 1.414 divided by, so this will be 0.1 upon 0.4. So what should it be? 6.056. सो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक, तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा 6.06 मीटर, राइट. इट्स अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप, सो आंसर शुड बी 6.06. Funda clear, right? So these are the different various kinds of questions which are usually asked in JEE. Correct? I repeat, हमें दो चीजों का ख्याल रखना है. रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस या तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे विच आर यूजुअली इन लाइक प्रिज्म डिस्पर्शन डेविएशन को लेकर, या फिर प्योर ज्योमेट्री जैसे होंगे. करेक्ट. या लेंस में हम बात करेंगे तो अगेन फॉर्मूला हमें यूज करना होगा और ज्योमेट्री भी होगी. Correct? Funda clear? So I hope you enjoyed, you learned, right? So keep watching and keep learning. Goodbye. Take care.